Hi guys, welcome to Mish Vlogs. I know I haven't come up with a video from a long time, but I swear this is gonna be worth it. So today's video is gonna be about if you're coming from Canada, what all can you pack, what all to pack, and it's basically gonna be about what all mistakes I made and what all things I got over here that I didn't even open and I didn't even use, and what are the things that I would bring all over again. Okay, so without any further ado, let's begin the video. So first of all, I would like to congratulate you all who are watching this video. If you're watching this video, obviously you're in the last step of coming to Canada, and I know this can be very hard and stressful because you don't know what to pack and what not to pack. There's only limited space. For those who don't know, there's only 23 kgs into 2 for some airlines and one baggage of 7 kg that you can carry along with yourself, and it just depends on the airlines that you're booking, right? So please just check it with your airlines, and due to convenience reasons this video is gonna be in Hindi. So let's just begin. The first category I would like to talk about is clothing. तो कपड़ों में सबसे पहली चीज़ जो बहुत important है is thermal wear, which is very controversial because some of the people say that don't bring it, some of the people say कि अच्छी बात है लाना चाहिए. The region where I stay GTA, यहाँ पे मुझे honestly एक भी बारी ज़रूरत नहीं पड़ी है thermal wear की, but अगर आप किसी ऐसी जगह आ रहे हो जैसे एल्बर्टा हो गया या फिर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ती है, I would recommend you to bring it. अगर आप GTA वगैरह भी आ रहे हो, just bring 1 or 2 just in case. As I said, मैं लेके आई थी but I never used it because बाहर तो ठंड होती है but when you're going inside there's not as much cold, so you're just wearing jackets and you're just wearing your hoodies or t-shirts beneath it जब आप कॉलेज वगैरह जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो you just take off the jacket and you're just good with the t-shirt or your hoodie, right? One thing that I wear religiously, मैंने आज तक पहनी है, हर कोई पहनता है and आपको लानी ही लानी चाहिए, is sweatshirts and hoodies. So please bring 3 to 4 pairs of sweatshirts or hoodies because like I said, आप कॉलेज जाओगे और आप शिफ्ट्स वगैरह पे जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा तैयार होने का, तो हर किसी को यही कंफर्टेबल लगता है कि आपने बस हुडी पहनी है और आप चले गए. सो चाहे वो सुबह सुबह जल्दी ही क्लास हो या फिर आपकी शिफ्ट्स है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू आर वर्किंग, राइट? 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, 12 आवर्स की शिफ्ट्स होती हैं, तो दैट्स रियली नाइस. अनदर थिंग जो हुडीज़ के साथ चलती है इज़ यहाँ पे जीन्स बहुत कम लोग पहनते हैं. आई थिंक मैंने ही खुद ने बहुत कम पहनी है बिकॉज इतनी ठंड होती है एंड यू डोंट लाइक टू वेयर जीन्स. एंड देन लाइक आई सेड दैट सुबह सुबह जल्दी क्लासेस होती है, शिफ्ट्स होती है, यू डोंट लाइक ड्रेसिंग अप एवरी डे. तो जस्ट ब्रिंग 3 to 4 pairs ऑफ लाइक वार्म जॉगर्स जिसके अंदर फ्लीस वगैरह होती है. मे बी जस्ट ब्रिंग 1 or 2 नॉर्मल जॉगर्स एंड 2 or 3 फ्लीस वाले जॉगर्स जो होते हैं. I would also say that bring 5 to 6 ankle socks and then 5 to 6 दूसरे जो warm वाले socks होते हैं, जो लंबे वाले होते हैं, that as well, because ankle socks ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, but then if you're wearing your sneakers and all of that, तो उसके साथ obviously you would wear ankle socks, लेकिन winters में ankle socks नहीं चलेंगे, तो bring your warm socks. Please bring 2 to 3 pairs of jeans, जैसे कि आप maybe bring 2 pairs of blue jeans and bring 1 pair of black jeans or any other jeans if you wear, but don't bring a lot of jeans. 2-3 भी jeans इसीलिए बोला है because यहाँ पे मैंने बहुत सारी jeans ट्राई की हैं, कोई भी ढंग से फिट नहीं आती है. And then if you have to buy a really good one, that would cost you around $80 to $100 very easily. वो भी मैं बात कर रही हूँ लीवाइस वगैरह की, अगर आपको लेनी है तो इट्स बेटर इफ़ यू ब्रिंग इट बैक फ्रॉम इंडिया itself. And then bring 3 to 4 t-shirts that you can wear on a normal basis, like कॉलेज पे पहन के चले गए या फिर कहीं भी ऐसे छोटा मोटा you can wear it. घर पे पहनने के लिए भी you can bring t-shirts. If you Another thing I would like to say is that अगर आप लोग शॉपिंग कर रहे हो कनाडा आने की तो प्लीज़ डोंट डू इट बिकॉज इट्स बेटर कि आप यहाँ पे आके ख़रीदो. आपने वैसे भी चीज़ें ख़रीदनी होंगी यहाँ पे आके, तो इट्स बेटर कि इंडिया में पैसे वेस्ट मत करो क्योंकि लिमिटेड बैगेज होगा, लिमिटेड स्पेस होगी. और यहाँ पे वॉलमार्ट वगैरह है तो वहाँ पे यू कैन ईजिली गेट प्लेन टी शर्ट्स फॉर अराउंड $5 to $6. बट हाँ, हुडीज़ और जॉगर्स जो है ढंग के यहाँ पे महंगे आते हैं, मिल जाते हैं, बट जो मिलते हैं वो 1-2 वॉश के बाद ख़राब हो जाते हैं, उस पर भूर चढ़ने लग जाती है, लिंट आने लग जाता है.
तो इट्स बेटर कि आप H&M वगैरह की ढंग की क्वालिटी की लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे H&M की क्वालिटी भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी ऑनेस्टली. फॉर गर्ल्स यू कैन ब्रिंग मे बी 2 टॉप्स जो ड्रेसी वाले होते हैं अच्छे से, बिकॉज लाइक आई सेड आप ज़्यादा नहीं पहनोगे, बट इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स टू गो टू पार्टीज़ या फिर डिनर या फिर समथिंग, तो जस्ट ब्रिंग सम इन केस. और वैसे भी जब आप यहाँ पे आओगे, टॉप्स और ये सब इज़ वेरी इजीली इवन फॉर गाइज. यू विल ऑब्वियसली बाय टॉप्स और ये सब कुछ ड्रेसी क्लोथ्स, और ये सब ऑनेस्टली यहाँ पे सस्ता भी काफ़ी है. यू कैन ऑल्सो ब्रिंग 1 to 2 कोट्स, वो भी अगर आपके पास ऑलरेडी है. अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ यहाँ पे आके ख़रीदो, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी कोट्स वगैरह की बेटर है. कोट्स हो गया चाहे जैकेट हो गई, तो वो यहाँ की क्वालिटी इज़ मच बेटर. मैं लेके आई थी ज़ारा वगैरह की जैकेट्स, थी काफ़ी महंगी, बट देन यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं चलेगी बिकॉज यहाँ की विंटर एक्सट्रीम है. तो मे बी यू कैन वेयर इट इन फॉल या फिर स्प्रिंग वगैरह होगा, बट वो नॉर्मली नहीं चलेगी. या फिर मे बी अगर आपने कोई बहुत हैवी हुडी वगैरह पहनी है उसके ऊपर आप चला सकते हो, बट एक्सट्रीम विंटर में नहीं चलेगी. एंड देन आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू टू ब्रिंग 10 to 15 पेयर ऑफ अंडर गारमेंट्स, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्ड्री ज़्यादा टाइम नहीं करोगे, इवन अगर आपने सोच लिया कि आप हैंड वॉश कर लो या कुछ भी, बट उसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा. तो प्लीज़ ब्रिंग 10 to 15 पेयर्स ऑफ अंडरगारमेंट. यू कैन ऑल्सो ब्रिंग 1 to 2 पेयर्स ऑफ फॉर्मल्स. अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह पे जाओगे, उसके लिए अगर कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशंस है, या फिर अगर आपका कोर्स बिजनेस वगैरह से रिलेटेड है जिसका कोअप होगा और आपको ऑफिस वाली सेटिंग में या फिर बैंक्स वगैरह में जाना होगा, तो यू कैन ब्रिंग सम फॉर्मल्स फॉर दैट पर्पस, बिकॉज यहाँ पे इफ़ यू हैव टू गेट टेलर्ड स्टिचिंग दैट्स वेरी एक्सपेंसिव. For girls, I would recommend please bring 1 to 2 pair of leggings, black और कोई भी और color, because that is going to be very comfortable for you. Traditionals, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, you don't have to bring a lot. If you think that you're going to go to गुरुद्वारा या फिर ऐसी सी कोई जगह, तो please bring 1 to 2 कुर्ताज maybe, because you're only going to wear it in summer. कुछ लाना है लड़कियों को तो मे बी ब्रिंग जस्ट 1 गुड ट्रेडिशनल वेयर. वो भी इसीलिए कि कभी कभी फंक्शंस होते हैं, या इफ़ यू वांट टू गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड या समथिंग लाइक दैट, तो ब्रिंग 1 ट्रेडिशनल आई वुड से. Let's move on to footwear now. So for footwear you can bring 1 to 2 pairs of slippers. Maybe just bring one जो normal slipper होती है and second वाली जो slider होती है that. Otherwise if you're just bringing one slipper emergency के लिए, तो यहाँ पे slippers are also very cheap. Bring 1 running shoes, not a lot, because you won't need them. सिर्फ समर में यूज़ करोगे, और समर में भी कितना टाइम कर लोगे, 2-3 महीने 4 महीने. आई वुड से ब्रिंग स्नीकर्स इफ़ यू हैव देम ऑलरेडी अच्छे वाले, तो ब्रिंग 1 to 2 पेयर्स ऑफ स्नीकर्स, बिकॉज दैट इज़ आई थिंक वॉट यू विल वेयर ओवर योर कॉलेज वगैरह में या फिर कहीं भी, चाहे गर्मियाँ हो या फॉल वगैरह में भी, थोड़ी सर्दियों में भी यू कैन वेयर स्नीकर्स. अगर बूट्स लेके आने हैं लड़कियों को या लड़कों को, तो आई वुड सजेस्ट यू टू वेयर देम वाइल कमिंग ओवर हियर, बिकॉज उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है. तो जो भी आपका शूज़ का आपको लग रहा है कि वेट बहुत ज़्यादा और आपको लेके ही जाना है, तो वेयर इट एंड कम आई वुड से. तो जब मैं आई थी, जस्ट अ प्रो टिप, आई वोर टी शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर पहन लिया था हुडी, पहनी थी उसके ऊपर कोट पहना था, जैकेट बांध ली थी, क्योंकि आई वॉज वेरी ओवरवेट विद माई लगेज. सो दैट इज़ वॉट आई डिड विद माई क्लोथिंग्स. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टॉयलेटरीज. हर कोई भूल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग नेल कटर. ऐसा नहीं है कि यू वोंट बी एबल टू गेट इट ओवर हियर, बट भाई नेल कटर लेने कौन ही जाएगा सिर्फ एक. यू कैन ऑल्सो ब्रिंग अ बॉडी वॉश. इतने साइज़ का एक बॉडी वॉश आता है, दैट इज़ वॉट आई गॉट. मे बी 120 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का इतना सा आ जाता है, एंड यू कैन यूज़ इट फॉर मे बी 1 to 2 months, मे बी लॉन्गर देन दैट. यू नीड इट. यू कैन ऑल्सो ब्रिंग बॉडी लोशन, बिकॉज सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन, तो मे बी ब्रिंग अ स्मॉल बॉडी लोशन. Other than that you don't have to bring a lot of this body lotion or body wash या कुछ भी होगा, because you will easily get it from Walmart and all of these good companies. तो ढंग के रेट पे मिल जाता है. I think around $5 to $10 के बीच में बहुत ढंग के कंपनीज़ की आपको चीज़ें मिल जाएंगी. फेस वॉश होता है कुछ लोगों का, बिकॉज स्किन टाइप पे सूट नहीं करता है, तो कुछ लोग इंडिया का ही यूज़ करते हैं. मे बी ब्रिंग अ स्मॉल फेस वॉश होगा. ये सब जो है छोटी छोटी चीज़ें, यू कैन पुट इट इन योर बैकपैक, राइट. जो आप बैकपैक लेके आओगे उसमें आप ये सब डाल सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है.
और वेट भी कम लगेगा लगेज में। तो एक चीज़ है जो मुझे लगी कि मैं लेके आती स्टॉक में, वो थी हेयर सिरम्स, बिकॉज यहाँ पे हेयर सिरम्स थोड़े महंगे हैं। आई थिंक $15 to $20 का इतना सा एक बॉटल आता है लिवॉन का, या फिर कोई भी आपको लेना है तो मे बी ब्रिंग इट फ्रॉम इंडिया इफ़ यू यूज़ हेयर सिरम्स। शैम्पू और कंडीशनर इंडिया से कैरी करना सबसे आसान बात है। जस्ट ब्रिंग द पैकेट्स ऑफ शैम्पूज एंड कंडीशनर्स, ब्रिंग एज मैनी पैकेट्स और एज मैनी कंडीशनर्स यू वांट, क्योंकि उसका तो वेट इतना कुछ पता भी नहीं लगेगा। जो लगेज के सामने वगैरह वाली पॉकेट होती है, यू कैन पुट इट इन दैट। टूथपेस्ट लेके आ सकते हो एक बड़े वाला, जस्ट टू लेट यू नो, अगर आपको जानना है यहाँ पे आता है अराउंड $3 to $4 का, तो इनिशियली छोटा या बड़ा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टूथपेस्ट ला सकते हो। टूथब्रश हो गया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाल लेके आओ इंडिया से, बिकॉज यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव हैं, ढंग के मिलेंगे अराउंड $20 to $30 का एक टाल, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी। हीट बॉटल्स होती है जो जिसमें पानी डाल के आप बॉटल्स यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन ब्रिंग दैट। यहाँ पे भी है, वैसे मिल जाती है $10-15 की, बट वहाँ वाली मुझे ऑनेस्टली इंडिया वाली ज़्यादा ड्यूरेबल लगी। एक अम्ब्रेला लेके आ सकते हो छोटी सी, अगर स्प्रिंग वगैरह के टाइम पे आ रहे हो या फॉल के टाइम पे आ रहे हो। समर वगैरह में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे मिल जाती है, पर थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो इंडिया से ले आओ, अच्छी बात है। आई थिंक $200-300 रुपये की अच्छी सी मिल जाती है। लेट्स मूव ऑन टू फूड एंड किचन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हमारे नोन में कोई भी इंडिया जाता है तो हम फूड ही मंगवाते हैं, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी रियली मिस। और इतना टाइम ऑनेस्टली यहाँ पे नहीं होता है कि आप खाना बनाते रहो, तो वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट आई वुड रिकमेंड यू टू ब्रिंग इज़ वो जो रेडीमेड पैकेट्स आते हैं ना MTR वगैरह के, जैसे उत्तपम वगैरह हो गया, इडली हो गया, पोहा आ जाता है, तो प्लीज़ ब्रिंग दैट। कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ वो डालना है और उसमें पानी डालना है, यू आर गुड टू गो। तो जब आपके पास टाइम नहीं होता है, दैट्स वेरी ईजी। एंड देन वेलकम टू कैनेडा गाइज। यहाँ की मैगी का टेस्ट बिल्कुल भी इंडिया जैसा नहीं है, तो इफ़ यू वांट यू कैन ब्रिंग योर मैगी फ्रॉम देयर, कुछ पैकेट्स फॉर इनिशियल डेज। वैसे यहाँ पे भी जो छोटे वाला पैकेट होता है वो अराउंड 39 सेंट्स का आ जाता है। मसाले यहाँ पे सारे मिल जाते हैं, तो मसाले आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेके आई थी हर मसाले का इतना पैकेट, और वो इतना वेट भी नहीं लगा था मुझे, मे बी 500 ग्राम्स लेके आई थी मैं शायद। इतना ज़्यादा वेट नहीं था, पर आई थिंक मेरा वो साल चल गया था उनसे। तो आई वॉज वेरी ग्लैड टू ब्रिंग मसालाज फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ कुकिंग। अगर आप कुकिंग नहीं करते हो तो आपको लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आई वुड सजेस्ट यू टू ब्रिंग ओवर हियर फ्रॉम मसालाज, दैट इज़ प्लीज़ ब्रिंग रेड चिली पाउडर, बिकॉज यहाँ का बहुत ज़्यादा गंदा है। इंडियन स्टोर से भी लेके देखा है, वॉलमार्ट से भी लेके देखा है, बहुत गंदा है। कुछ लोग मैगी मसाला भी लेके आते हैं यहाँ पे, बिकॉज दे रियली लाइक इट। जस्ट टू लेट यू नो फॉर रेफरेंस, यहाँ पे एक इतना सा पैकेट आता है मसालों का, चाहे वो कोई भी मसाला हो, $1.50 to $2 तक का आ जाता है वॉलमार्ट वगैरह पे। तो अगर आपको प्राइस मैच वगैरह करना है इंडिया से, तो यू कैन डू दैट। एक चीज़ अगर लाना चाहो, अनदर दैट आई वुड हाईली रिकमेंड इज चाय पत्ती के छोटे छोटे टी बैग्स नहीं, लूज टी जो होती है उसके छोटे छोटे वो पैकेट्स आते हैं रेड लेबल वगैरह के। उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है, सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है। यहाँ पे ऑनेस्टली इतना बड़ा डब्बा मिलता है या इतना बड़ा पैकेट मिलता है चाय का, दैट इज़ अराउंड $15 to $20, एंड आई थिंक दैट इज़ अ लॉट। कुकर सब बोलते हैं लाना चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि आप कुकिंग करोगे तो आप कुकर ला सकते हो, बिकॉज़ 2 लीटर का बहुत ढंग का आ जाता है कुकर, और यहाँ पे चलता भी है। चाहे आपने चावल बनाना है, सब्जी बनानी है, कुछ भी बहुत जल्दी बन जाता है कुकर में। इट कम्स वेरी हैंडी। यहाँ पे अगर लेना है तो इट कम्स, आई विल जस्ट पुट अ पिक्चर ओवर हियर फॉर योर रेफरेंस, अराउंड $55 से बिगिन होता है। जो ढंग के कुकर हैं, ढंग के क्या सारे कुकर इतने से शुरू होते हैं। आई डोंट नो अबाउट इंडियन स्टोर्स, आई एम नॉट श्योर, पर वॉलमार्ट वगैरह पे इतने के ही मिलते हैं। एंड अगर आपको सिर्फ राइस बनाने के लिए चाहिए, दैट यू कैन गेट ओवर हियर। $20 का इतना सा राइस कुकर आ जाता है, पर उसमें सिर्फ आप राइस ही बना सकते हो, यू कैन नॉट कुक योर वेजिटेबल्स एंड स्टफ इन दैट। और ला सकते हो इंडिया से मे बी 2 स्पून्स हो गए, 2 फोक्स हो गए, एक प्लेट हो गई, दैट इज़ माइक्रोवेव सेफ़, एक बोल हो गया, दैट इज़ माइक्रोवेव सेफ़। अगर आते ही चाय वाय पीनी और ऐसे कुछ बहुत वो है, तो यू कैन ब्रिंग 1 मग एज वेल। एंड देन पानी पीने के लिए ग्लास ला सकते हो, बट जस्ट टू लेट यू नो ये सब डॉलरामा पे यहाँ पे बहुत चीप मिल जाता है। एक और चीज़ जो मैं इंडिया से लेके आई थी और मैंने बहुत यूज़ की है, दैट इज़ दिस टी पैन। बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, अभी भी चल रहा है, एंड इट इज़ रियली गुड।
I mean 3 साल हो गए हैं, but it is in a good condition. So yes, I use this and I would bring it again and I would suggest you to bring it. एक मैं तवा लेके आई थी, हॉकिंस या फिर प्रेस्टीज का था, आई थिंक 1500 या 2000 रुपीज़ का था, बट ऑनेस्टली वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो गया था, मे बी 1 साल बाद ख़राब हो गया था, बहुत गंदी कंडीशन हो गई थी उसकी, बिकॉज आई हैव मूव्ड अ लॉट एंड जितने मैं घरों में गई हूँ सब में अलग अलग गैस का वो था, किसी में कॉयल था, किसी में बर्निंग वाला था, किसी में इंडक्शन था, तो वो बेचारा सह नहीं पाया और वो डेड हो गया था। तो मैंने एक पैन यहाँ से लिया था, तवा जैसा, जिसमें आप थोड़ा फ्राई वगैरह भी कर सकते हो। आई जस्ट शो इट टू यू। ये स्टार फ्रेट नहीं, ये टी फॉल का पैन है, तो आई गॉट दिस वन। पीछे से बेचारा बहुत गंदा हो चुका है, बट येस आई गॉट दिस। आई थिंक ये था $15 का। इसमें रोटी भी बन जाती है, स्क्रैम्बल्ड एग वगैरह, ऑमलेट, सब कुछ बन जाता है, एंड देन ऑयल भी बहुत कम यूज़ होता है। तो दिस आई गॉट फ्रॉम वॉलमार्ट। अनदर थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम हियर कैनेडा इटसेल्फ इज़ दिस कढ़ाई। तो ये थी अराउंड $35 to $40 की थी, लिड वाली है, काफ़ी अच्छी थी और ये काफ़ी ज़्यादा चली है। अगैन इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ होता है, होल भी है, तो इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ होता है एंड दिस इज़ रियली रियली नाइस। और ऑनेस्टली इंडिया की कढ़ाइयाँ वगैरह यहाँ पे इतनी नहीं चलती हैं, फॉर मी नहीं चली थी, जबकि मैं प्रेस्टीज वगैरह की लेके आई थी। तो आई वुड सजेस्ट कि पैसे खर्च नहीं है तो यहाँ पे आके ले लो। और वैसे भी यहाँ पे वॉलमार्ट वगैरह पे डील्स लगी होती है यूटेंसिल्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप किसी के पास आ रहे हो तो यू कैन सिंपली आस्क देम कि उनके पास कौन से बर्तन है, कौन से नहीं है, तो विच यूटेंसिल्स यू कैन ब्रिंग अकॉर्डिंगली, राइट। डॉलरामा पे आपको मग्स, प्लेट, सब कुछ मिल जाता है। आई थिंक जैसे ही आप कनाडा आओगे आपको फर्स्ट ट्रिप डॉलरामा में ही लगानी पड़ेगी। तो आई थिंक प्लेट्स मिल जाती है वहाँ पे $1.50 to $2 की, बहुत अच्छी अच्छी थी, बड़ी बड़ी। एंड देन दिस मग आई गॉट रियली नाइस फ्रॉम डॉलरामा इटसेल्फ। ये था अराउंड $2 का आई थिंक। स्पून्स का भी पूरा सेट मिल जाता है इनफैक्ट आपको डॉलरामा से, लैडल्स हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, एक चीज़ है कि आप लैडल जो वुड की होती है वो आप इंडिया से लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लैडल्स की क्वालिटी ढंग की नहीं मिलती। एक मैं नाइस ज़रूर लेके आई थी इंडिया से, छोटे वाला, ये वाला, बट एक फ़नी चीज़ हुई थी इसके साथ। लगेज लाते हुए बेचारे का फ्रंट थोड़ा हैप्पी बर्थडे हो गया था, तो मैंने यहाँ पे डॉलरामा से लिया था। आई थिंक ये था $3 to $4 का आ गया था, इतना बड़ा। तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। अपने लगेज में स्पेस ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्लीज़ वही लेके आना। कंटेनर्स वगैरह भी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाना है तो कुछ लोग बोलते हैं कि वैसे मसाले वाला जो वो बॉक्स होता है आप वो लेके आ सकते हो, बट मैं नहीं लेके आई थी और मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई बिकॉज मैंने डॉलरामा से ये ख़रीदे थे। तो ये आई थिंक पूरा सेट आया था, 3, 6 या 12 का आया था, आई डोंट रिमेंबर, और बहुत कॉस्ट फ्रेंडली था और इससे कुछ गिरता भी नहीं है इफ़ यू क्लोज इट टाइटली। तो आई हैव अ लॉट ऑफ दीज। अनदर थिंग इज़ कि अगर आपके पास वो थर्मस वगैरह की बॉटल्स होती है वो नहीं है और अगर आप ख़रीद रहे हो तो आपको वहाँ से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है वॉलमार्ट में। आई थिंक अराउंड $20-25 की मिल जाती है। मेरे पास ये वाली है कॉन्टेगो की, तो दिस इज़ फॉर आई थिंक $20 की आई थी, 20 या 25 की आई थी, अगेन आई डोंट रिमेंबर। एंड देन एज यू विल सी कि इसमें 7 आवर्स गर्म रहता है एंड देन 18 आवर्स कोल्ड रहता है। तो दिस इज़ रियली नाइस। बिफोर आई फॉरगेट, अगर आप खाना बनाते हो, अगर आपको लगता है आप यहाँ पे आके रोटी बनाओगे, तो यू कैन ब्रिंग 1 रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड। मैं लेके आई थी रोलिंग पिन और मैंने रोटियां बनाई थी स्टार्टिंग में, बट देन एज ए सेड मैंने बहुत शिफ्ट किया और मुझे नहीं पता वो किस घर में रह गया है, तो अब मैंने टिफ़िन यूज़ किया हुआ है। आई यूज़ टिफ़िन सर्विसेज। अगर आपको किसी टिफ़िन सर्विसेज वगैरह का नंबर चाहिए तो आई कैन शेयर इट विद यू, जस्ट कॉमेंट इट और जस्ट कॉन्टैक्ट मी। मेरे पास बहुत सारे हैं, बट प्रोवाइडेड आप GTA में रहते हो। एंड देन रोलिंग बोर्ड तो मैं तब भी नहीं लेके आई थी, फॉर दोज हु डोंट नो इट्स जस्ट चकला एंड बेलन। मैंने सुना है लोगों से कि डॉलरामा में मिल जाते हैं $4 के, पर मेरे को आज तक नहीं दिखा कहीं। इंडियन स्टोर्स पे मैंने देखा है मिल जाता है, पर वो होता है $20-25 का। आई डिडंट थिंक दैट इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग $25 ऑन दैट थिंग। खाने में एक और चीज़ लेके आनी है तो पिनियाँ लेके आ सकते हो, और जो लेके आएगा प्लीज़ मुझे भी भेज देना। अचार वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो यहाँ पे इजीली मिल जाता है और बहुत अलग अलग वेराइटी का मिल जाता है। इंडिया में भी नहीं सुनी होगी इतनी वेराइटीज़। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ मेडिसिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अभी स्टॉक करवाई है। मेडिसिन बहुत काम आएगी, डी कोल्ड, एम कोल्ड, कोई भी कोल्ड की मेडिसिन जो लेते हो। मेरे लिए इफ़ेक्टिव है डी कोल्ड या एम कोल्ड, तो आई जस्ट स्ट्रिक्टली रिलाई ऑन दैट। बहुत ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज वेदर बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। फीवर की मेडिसिन हो गई अपनी डोलो, कॉम्बी फ्लेम, ये सब। हेडेक की मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया है, तो यू कैन ब्रिंग योर हेडेक की मेडिसिन। कफ सिरप लेके आना मत भूलना, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है सर्दियों में, यू विल गो टू द स्टोर्स, ड्रग स्टोर्स, आप देखोगे कि मोस्टली सारे ख़त्म हो गई होती हैं, बिकॉज पीपल कीप अ स्टॉक ओवर ईयर। तो बकलेस इज़ अ रियली गुड वन ओवर ईयर इन कैनेडा। अदरवाइज़ आप इंडिया से ज़रूर लेके आना अपनी कफ सिरप्स वगैरह। स्टमक पेन, अपसेट, डायरिया वगैरह की मेडिसिन प्लीज़ मत भूलना, यहाँ पे बहुत गंदमंद खाओगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। डिटॉल लेके आना, छोटे बहुत खाओगे। सिट्राजिन लेके आ सकते हो, अगर आपको कोई और एंटी एलर्जिक सूट करती है वो लेके आ सकते हो, बट प्लीज़ लेके आना। एंटीबायोटिक्स लेके आना। बॉडी पेन की कोई मेडिसिन लेके आना, जैसे कि मूव वगैरह हो गया। और बॉडी पेन के लिए जो बैंडेजेस आती है, इलास्टिक बैंडेजेस फॉर बॉडी रिलीफ, बॉडी पेन रिलीफ, वो भी लेके आना। बैंडेड्स लेके आ सकते हो, वैसे तो यहाँ पे भी मिल जाती है, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, बट देन इट्स अगेन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मुझे यहाँ की मेडिसिन सूट नहीं करती है, मुझे इंडिया की ही सूट करती है, और यहाँ की मेडिसिन थोड़ी एक्सपेंसिव भी लगेंगी। तो सिर्फ बकलेस का जो मैं बोल रही हूँ इतनी सी आती है, वो $20 की आती है और मिलती भी बहुत रेयरली है। थर्मामीटर लेके आना। प्रिस्क्रिप्शन लेके आ सकते हो। अब अगर किसी को नहीं पता है प्रिस्क्रिप्शन कैसे लेनी है, क्या फंडा होता है इसका, तो कुछ नहीं करना है, बस जहाँ से मेडिसिन ले रहे हो, कभी कभी उनके पास खुद के पास भी डॉक्टर्स होते हैं, उनसे भी पूछ सकते हो केमिस्ट वगैरह से कि इसकी प्रिस्क्रिप्शन कहाँ ले सकते हो। उनको बता देना कि अब्रॉड जा रहे हो, या कोई भी लोकल डॉक्टर अगर हो उससे भी जाके ले सकते हो। उसको सिंपली ये बोलना है कि यू आर गोइंग टू कैनेडा, और आपको इन सब मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन दे दे कि आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, तो उस पर आपका नाम वगैरह आ जाएगा। वैसे तो मेरा ना ही कभी मेरी चेकिंग हुई है, ना ही कभी मेरे किसी फ्रेंड की चेकिंग हुई है, बट यू नेवर नो, कभी भी बुरा दिन आ सकता है, तो प्लीज़ ब्रिंग अ प्रेस्क्रिप्शन विद योर सेल्फ। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन अगर आपको लगता है आपके पर्सनल नीड के लिए ज़रूरी है, एंड अगर मैं भूल गई हूँ मेंशन करना, तो प्लीज़ ब्रिंग इट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर डॉक्यूमेंट्स। तो इसकी पूरी फाइल बनेगी, इसका पूरा फोल्डर बनेगा। अभी मेरा सूटकेस में है, तो आई डोंट हैव द एनर्जी टू ओपन इट एंड शो, बट येस, पूरा बड़ा सा फोल्डर लेके आई थी मैं भी। और जो बैकपैक होता है, अनदर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, तो अपना बैकपैक इंडिया से लेके आना, चाहे ब्रांडेड से ब्रांडेड लेके आना पैसे खर्च के, पर यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे, तो ब्रिंग इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ, बिकॉज कॉलेज वगैरह कहीं भी जाओगे यू विल यूज़ इट। अपने बैकपैक में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल लेना, और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में सबसे पहले तो ऑब्वियसली बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह डालोगे, अपने गवर्नमेंट आईडीज़ हो गई, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड, वो डाल सकते हो। वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी, ना बर्थ सर्टिफिकेट की, ना कोई किसी गवर्नमेंट आईडी की, एक्सेप्ट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लेके आ सकते हो, और अगर एक्सपीरियंस है तो DL एक्सट्रैक्ट भी बनवा के लेके आ सकते हो, बिकॉज इट विल कम इन हैंडी ओवर ईयर। अगर एक बार यहाँ पे आ ही रहे हो तो बारी बारी डॉक्यूमेंट्स लेने इंडिया कौन जाएगा, और फिर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कुछ इंडिया में है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आई वुड से यहाँ पे ले आओ, फाइल बना के रखना है तो इंडिया में यू कैन कीप अ फोटो कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे भी कोशिश करना कि जितने डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हो फोटो कॉपी ऑलरेडी इंडिया से करवा के आओ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, एंड देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल कि अगर कभी गुम हो जाए। सबसे पहले अपनी सारी एकेडमिक मार्कशीट्स लेके आना, लेटेस्ट से लेके 10th तक की अगर हो सके तो जिन लोगों ने इंडिया से बैचलर्स या फिर डिग्री की हुई है तो प्लीज़ ब्रिंग योर डिग्रीज, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार यहाँ पे आ गए तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इट बैक, राइट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप PR अप्लाई करोगे तो आपके पास अपनी डिग्री ऑलरेडी हो, बिकॉज यहाँ के हिसाब से आपकी डिग्री इज़ नल एंड वॉइड until you get it transferred according to the Canadian standard. कोविड वैक्सीनेशन का जो प्रूफ है वो लेके आ सकते हो, अपना सर्टिफिकेट। वैसे तो अब इतना नहीं मांगते हैं, बट जैसे कि मेरा जो प्रोफेशन है, जो मेरा कोर्स था वो चाइल्ड केयर हेल्थ केयर से रिलेटेड था, तो आई नीडेड अ लॉट ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। तो देयर माइट बी सम प्लेस जो आपसे पूछ ले, तो इट्स बेटर यू ब्रिंग इट देन सेइंग अ नो।
अपने रिज्यूमेज निकलवा के लेके आ सकते हो। अब जब रिज्यूमेज बनाओगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट, बट रिज्यूमेज अपने अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू बनाना। जैसे कि हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं कि अगर आपने फूड वगैरह में काम करना है तो आप फूड का अलग से बनाओगे, आपने ऑन कैंपस जॉब ढूंढनी है तो ऑन कैंपस का अलग से बनाओगे, एंड देन आपने कोई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब ढूंढनी है उसका अलग से बनाओगे, बट देन अलग अलग रिज्यूमेज फॉर डिफरेंट जॉब्स। ओके, तो आप उसके रिज्यूमेज निकाल के आ सकते हो फॉर इनिशियल डेज, बिकॉज यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव हैं। यू शुड ऑल्सो ब्रिंग योर डॉक्यूमेंट्स दैट यू यूज्ड वाइल अप्लाइंग फॉर योर वीज़ा ना। आइल्स का जो टेस्ट स्कोर का रिजल्ट होता है वो लेके आ सकते हो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके आ सकते हो? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कोई FD वगैरह यूज़ की है और आपने कोई लोन नहीं लिया है तो आप उसके प्रूफ के लिए वो सब लेके आ सकते हो जो जो आपने यूज़ किया था। अगर कोई लोन वगैरह लिया है तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके आ सकते हो। पेरेंट्स की ITR लेके आनी है 2 साल की जो यूज़ की थी वीज़ा अप्लाई करते हुए। बैंक बैलेंस स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ्स। जो फ़ीस रिसीट प्रोवाइड की थी इंस्टीट्यूशन में जब फ़ीस पूरी भरी थी वो लेके आनी है, और उसके साथ साथ GIC जब भरी थी वो लेके आनी है। एक होता है जब आप फीस भरते हो तो जो आपका बैंक इंस्टीट्यूशनल बैंक होता है वो भी प्रोवाइड करता है एक रिसीट, आप वो भी लेके आ सकते हो साथ में। अगर आपने इंडिया में ऑलरेडी काम किया है तो प्लीज़ ब्रिंग अ रेफरेंस लेटर या फिर एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपको पे स्टब्स वगैरह मिले हैं वो भी प्लीज़ हैंडी रखना, बिकॉज अगर आप यहाँ पे अगेन जब आप PR वगैरह अप्लाई करोगे या कल को आपको कोई भी जॉब, रेफरेंस लेटर और एक्सपीरियंस लेटर इसीलिए बिकॉज कल को आपको कोई भी जॉब चाहिए होगी तो उसके लिए काम आएगा। अब मान लो आप वहाँ पे 2-3 साल पहले काम करते थे, यू डोंट नो वेयर द पीपल आर, सो इट्स बेटर कि आप पहले ही रख लो। एंड यहाँ पे रेफरेंस जब आप किसी का देते हो तो दे डू कॉल एंड दे डू कंफर्म। और अब जैसे कि नया रूल भी आया है कि जो आपका इंडिया का एक्सपीरियंस है वो काउंटेड होगा, एंड आपकी PR के लिए भी बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ ब्रिंग इट। सैलरी स्लिप मैंने क्यों बोला इज़ बिकॉज जब आप PR अप्लाई करोगे तो आप अगर बताओगे कि आपने इंडिया में काम किया है तो वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, तो एज अ प्रूफ यू कैन यूज़ दोज सैलरी स्लिप्स। अपने SOP का प्रिंट लेके आ सकते हो। इफ़ बाई चांस यू नीड एनी हेल्प इन योर SOP लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या कुछ भी है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके आ सकते हो। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तो कोई बहुत ज़्यादा मत लेके आना, डोंट गो टू क्रेजी, बट येस थोड़ी सी लेके आ सकते हो। जस्ट अपना ऑफर लेटर और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ज़रूर लेके आना कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमिग्रेशन में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ है जो मेरे किसी फ्रेंड ने फेस किया था, दे फॉरगॉट टू ब्रिंग द टाइम टेबल का प्रिंट आउट। तो इन द इमिग्रेशन उनका लक ऐसा था कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे प्रूफ भी वही मांगा कि अपना प्रूफ दिखाओ, तो दे डिडंट हैड दैट, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी। बट येस बैकअप के लिए प्लीज़ ब्रिंग अ प्रिंट आउट ऑफ योर टाइम टेबल जो भी आपने सेलेक्ट किया है अपने फॉलोइंग सेमेस्टर का। जो भी आपके बायोमेट्रिक्स आपको मिलेंगे, मेडिकल मिलेगा, उसके साथ जो भी चीज़ें मिलती हैं प्लीज़ उसका भी पेपर ट्रेल रखना, हर चीज़ का पेपर ट्रेल रखना। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू गो ऑन इज़ स्टेशनरी। अब ये काफ़ी ऑप्शनल है। वैसे तो मैं इंडिया से एक लेके आई थी क्लासमेट की नोटबुक, क्योंकि उसके जैसी क्वालिटी यहाँ पे ऑनेस्टली नहीं है, बट वो इतनी कोई ज़रूरत नहीं आती है बिकॉज यू जस्ट यूज़ योर लैपटॉप फॉर योर नोट्स। बट इफ़ इन केस यू फॉरगेट टू ब्रिंग इट फ्रॉम होम या फिर आपको यहाँ से ख़रीदनी है तो लेट मी जस्ट गिव यू अ रेफरेंस। एक ये वाली मिल जाती है ऐसी बहुत सारी ढंग की मिल जाती है। दिस वॉज फॉर अराउंड $150, तो ऐसी बहुत सारी मिल जाएगी यहाँ पे डॉलरामा से। पेन्स वगैरह भी काफ़ी सारे यहाँ से मिल जाते हैं, बट अगर लेके आना है तो मे बी ब्रिंग जस्ट 2 पेन्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा स्टेशनरी लाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट I can go to Dollarama one day and then show you वहाँ पे क्या क्या है, just to give you a reference. So if you need those kind of videos, just comment down below. तो next category is bedding. Again very very important. Please bring 2 bed sheets. Double size बोल देना कि double size bed sheets चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बेड शीट्स ऑनेस्टली बहुत एक्सपेंसिव है अगर ढंग की लेने जाओ तो। वैसे तो शीन वगैरह से सस्ती मिल जाती हैं, बट ढंग की लेने जाओ तो बहुत महंगी है। यू कैन ब्रिंग 1 सॉफ्ट वाला एक थ्रो ब्लैंकेट होता है विच आई गॉट, बहुत कम वेट होता है उसका और बहुत लाइट वेट होता है। यू कैन ब्रिंग दैट, चाहे समर्स हो या विंटर्स, काफ़ी काम आता है बिकॉज वैसे तो अंदर हीट चल रही होती है तो यू वुडंट नीड अ लॉट ऑफ दैट। बट वॉलमार्ट पे एक और चीज़ है, $20 का बहुत बेसिक सा एक
क्विल्ट जैसा सा कुछ मिल जाता है. तो इफ़ आई फाइंड इट आई विल लिंक इट डाउन बिलो, या फिर एक फ़ोटो अटैच कर दूँगी यहाँ पे. बट येस, लेकिन अगर कोई ढंग का लेने जाओ तो वो भी $50 to $80 का बहुत ईजीली मिलता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल चार्जर ज़रूर लेके आना. फ़ोन और लैपटॉप अगर है तो प्लीज़ ब्रिंग इट फ्रॉम इंडिया. अगर नहीं है तो यहाँ पे आके लेना. यहाँ पे काफ़ी डील्स होती हैं एंड यू विल फाइंड इट रियली हैंडी ओवर ईयर. मेरे साथ एक सीन हुआ था, मैं इंडिया से फ़ोन लेके आई थी, इतना कोई सही नहीं चलता था रेडमी का. बट देन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ़ोन ऑब्वियसली, बिकॉज आपने गूगल मैप्स वगैरह देखना है, आपको लोकेशंस नहीं पता है. तो मैं लेके गई थी और मैं गुम हो गई थी बिकॉज वो फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और रेडमी का चार्जर यहाँ पे हर एक के पास नहीं होता. तो आई वॉज लॉस्ट समवेयर एट अराउंड 2 or 3 AM और मैं घर पे पहुँची थी 4 बजे जाकर, और ये मेरा फर्स्ट डे था इन कैनेडा. तो येस, आई हैड अ वेरी गुड वेलकम इन कैनेडा. तो प्लीज़ कीप योर चार्जर्स विद यू. पावर बैंक ज़रूर लेके आना कि अगर कभी फ़ोन की बैटरी ख़त्म भी होगी, यू हैव अ पावर बैंक. आई डिडंट गेट इट, आई विश्ड इफ़ आई कुड हैव गेट इट. तो अगर आपके पास इंडिया में हेयर ड्रायर्स या स्ट्रेटनर वगैरह या वैसे सा कुछ है, एंड इफ़ यू हैव टू ब्रिंग इट, अगर आप डेली यूज़ करते हो तो आप ला सकते हो. बट यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, वोल्टेज वगैरह का फ़र्क है. यहाँ पे वैसे भी आप यूनिवर्सल चार्जर यूज़ करोगे तो वो गिरता ही रहेगा बारी बारी. तो इट्स बेटर कि यहीं पे आके लो. अब ये एक हेयर ड्रायर है, रेवलॉन का है, काफ़ी सही है. और यहाँ पे काफ़ी सही ऐसी चीज़ें मिल जाती है. ये था अराउंड $30 to $40 का. ऐसे ही और आपको हेयर स्ट्रेटनर वगैरह, चाहे कर्लिंग रॉड हो, कुछ भी हो, बहुत सस्ता मिल जाएगा. तो यू कैन कम एंड बाय इट फ्रॉम हेयर. अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो, वॉलमार्ट से ख़रीद सकते हो, शॉपर्स वगैरह से ख़रीद सकते हो. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक में लड़कों का ट्रिमर होता है, दैट इज़ आई वुड से अ बिट एक्सपेंसिव ओवर ईयर. तो अगर आपके पास इंडिया में है तो यू कैन ब्रिंग दैट ट्रिमर ओवर ईयर. ऑल्सो आपको लाना ही पड़ेगा या यहाँ पे आके ख़रीदना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू गो टू द सैलून्स तो यहाँ पे सर्विसेज ग्रूमिंग की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. और स्टार्टिंग में कमिंग एज अ स्टूडेंट यू वुडेंट गो टू अ सैलून, तो इट्स बेटर to bring that with you. So that was the list I could make for my video and that is what I came up with. अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कुछ पूछना है कि ये यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है या कैसी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो you can definitely contact me anytime. Please stay tuned because my next video is gonna be about जब आप यहाँ पे नए नए आते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो. So I'm gonna make a complete list and I'm gonna explain it to you briefly. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.